635 था ना। लेट्स स्टार्ट। See, today we are going to understand one of the most important, or I'll say the variance which is most crucial, and majority of you found it very difficult. That variance, as we know, is your fixed overhead cost variance. आज बुक का कोई काम नहीं है। आज का सिर्फ हमारा एजेंडा है कि हम ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अच्छे से समझ लें। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं। लेबर वेरिएंस नॉर्मल वाला ही, नॉट विथ एन आइडल टाइम। सो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत मोटा है भाई ये तो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, क्या दिक्कत है भाई, एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट? Standard R into standard rate. What is the meaning of actual cost? It is actual R multiplied with actual rate. ठीक है? The deduction between this two, the outcome between this two is going to become your labor cost variance. Labor cost variance. If the outcome is negative, then it is adverse. Outcome is positive, then it is favorable. Because it is coming out of two element R and a rate, therefore we understood that the reason for the variance could be either R or it could be rate. If it is due to rate, it is known as labor rate variance, which is standard rate minus actual rate. Multiplier would be actual R, because whatever rate that we have paid over and above what we should have paid on actual hour that we have consumed, or actual hour that has been worked. On opposite side, it would be standard hour minus actual hour multiplied with standard rate. Clear? यहाँ तक ठीक है? This does not require any further analysis. This required further analysis. This is known as labor efficiency variance. Now to further analyze, we are going to insert, बहुत मोटा पेन यूज करते हैं लोग, we are going to insert revised actual R in between them, so that we are having standard R, revised actual R, and actual R. This should be R. Huh? Sorry, not rate, R. Therefore, we can split this into two parts. Standard R minus revised actual R. Revised actual R minus actual R. This is labor gang variance. This is labor sub-efficiency variance. Obviously, multiplier is a standard rate in both of these cases. क्लियर है? यहां तक ये हमने लास्ट में अंडरस्टैंड किया था, और लास्ट में आइडल टाइम वाला फॉर्मूला भी हमने अंडरस्टैंड किया था. बट आई एम नॉट डिगिंग इनटू एन आइडल टाइम राइट नाउ. माय पर्पस इज टू as early as possible make you aware of all the formulas and how to derive all the variances, so that certain technical questions which are given, which I am expecting that they should ask in your exam, we should be able to tackle it. But for that, we need to first understand what exactly all this means. अब दो वेरिएंसेस हम कर चुके हैं, एक है मटेरियल का, दूसरा है लेबर का. ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस.
Now everyone please understand what we would be required to do in this particular case. The first and the most important thing, let me first draw the chart now, so that if you people wish to write down, this is my fixed overhead cost, whereas again, this is also standard cost minus actual cost. सारी फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, लेकिन पहले हम फॉर्मूला पूरा एक बार मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल एक बनाएंगे, उसको लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, and then we'll try to understand why this is happening exactly in the way in which I am telling you, so that you should be able to understand, okay fine, this is how and this is why the formula has been designed in this particular way. अगेन हम पहले से यही करते आ रहे हैं, आज तक ऐसा कोई इक्वेशन नहीं था जहां हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट नहीं किया हो। सब जगह पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही किया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है उसे बोला जाता है एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड। अच्छा, ये क्यों बोला जाता है उस पर भी हम आएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। इसको बोला जाता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। 99.99% this actual fixed overhead would be ready-made given you in your question. You need not require to calculate it. Absorb fixed overhead you probably need to calculate. Absorb fixed overhead you probably need to calculate. So ध्यान से समझना, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, और ये क्यों है उस पे हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। What is the meaning of absorb fixed overhead and why this absorb fixed overhead is nothing but your standard cost, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे इस पे फॉर्मूला बनाने में, और फिर वी आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ overview or understanding of what the fixed overhead variance is all about, and then again we are going to dig into it each and every terminology, और उसको हम कंपेयर करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस से कि कैसे ये सेम है। क्योंकि लेबर जब पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी की, वही फॉर्मूला फिक्स ओवरहेड में भी है, नाम अलग है वही चीज। फाइन। अब आगे एनालिसिस करने के लिए, दिस इज नथिंग बट योर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आगे एनालिसिस करने के लिए वी वुड बी रिक्वायर्ड टू इंसर्ट a new term here itself, which is known as budgeted fixed overhead. The moment we are inserting budgeted fixed overhead from the first step itself, देखो आगे हमने जब किया ना वहां एक सेकंड स्टेप में इंसर्ट करते थे, यहां हम पहले ही स्टेप में इंसर्ट कर रहे हैं किसको, बजटेड फिक्स ओवरहेड। जैसे हमने बजटेड फिक्स ओवरहेड को यहां पे इंसर्ट किया, नाउ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्लॉट, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, budgeted fixed overhead, and then actual fixed overhead. We can simply split this into two groups. It can go only from left to right. So one group would be between this two, second group would be between this two. Am I clear or not? So based on that, the formulas have been splitted. One is known as fixed overhead, not a capacity. This is known as fixed overhead. Volume variance, this is known as fixed overhead. Expenditure variance. What is expenditure variance? This part is known as expenditure, this part is known as volume. The formula is budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead. See, it goes from left to right only, budget में से ही actual minus, तो अब ये वाली फॉर्मूला में absorb में से ही budget minus हो सकता है। So this formula would be absorbed fixed overhead minus budgeted fixed overhead. Am I clear? Everyone, I hope understood. यहां तक सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। Now one more thing we are inserting in between this two, because we need to further analyze it, and क्यों एनालाइज कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और हर एक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा। पहले काम में पहली बार सिर्फ प्लेन तुम फॉर्मूला लिखोगे, फिर उस फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, और इंटरप्रिटेशन के बाद उसका एक्चुअल मतलब क्या है ना, फिर आपको समझ में आएगा ओके फाइन,
This is how it is happening and this is why the formula has been designed in this way. आगे एनालिसिस करने के लिए यहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं budgeted fixed overhead for actual R. This is what we are inserting here. The moment we are inserting this, we are having slab like this, absorbed fixed overhead, budgeted fixed overhead for actual R, and budgeted fixed overhead. Again, it can go from left to right only, and we are having two groups. Left to right mein we are having two groups. So this therefore would be further splitted into two more parts. Fixed overhead. This is known as capacity variance. This is known as fixed overhead efficiency variance. What is capacity? Budgeted fixed overhead for actual R minus budgeted fixed overhead. This is absorbed fixed overhead minus budgeted fixed overhead for actual R. यहां हमारा वेरिएंस खत्म हो जाएगा अगर हमें कैलेंडर वेरिएंस नहीं ढूंढना है तो। कैलेंडर वेरिएंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना है वो पहले ये समझेंगे। उसके बाद कैलेंडर के लिए एक और छोटा चीज इंसर्ट करना है, उसके अलावा ऊपर कुछ नहीं है। तो पहले बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला एज अ चार्ट एंड देन वन बाय वन वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द टर्मिनोलॉजीज आर ऑल अबाउट। लेकिन उससे पहले प्लीज इतना लिख लो।
Is it done? Everyone? Fine. See now, before even I start explaining, please everyone come on the screen. We need to have a clear understanding before we go to the next step. और जिन जिन के पास ना आपने तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना. एवरीवन प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. क्लासरूम में बैठे हैं हम लोग, सिर्फ तुम तुम्हारे घर पे हो, तो यू शुड बी इन अ कंडीशन कि आप कैमरा स्टार्ट कर पाओ. रेडमी अननोन लोग होते हैं ना, वो ऐसे टाइम पे गायब होते हैं. तो आखिर क्या हो रहा है, दिक्कत तेरे को? नाउ अंडरस्टैंड एनीवे. सी when you're looking at the formulas, up till now we used to have standard cost minus actual cost. This is what we used to do. Same thing we are doing here. The name has been changed to an absorbed fixed overhead. Actual has remained an actual. Now the fundamental difference that we all need to understand here is when we are comparing overheads with material and labor. What is the difference between fundamental difference between both material, labor and overhead में? What is the fundamental difference? सावित्री क्या डिफरेंस है? Yes, sir. What is the fundamental difference between material, labor and overheads? फाइनल में आ गए हो तुम, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, और मैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड का डिफरेंस पूछ रहा हूँ सिर्फ. मटेरियल रॉ मटेरियल पर बेसिस होता है, लेबर मैन पावर पर बेसिस होता है. ओके. बरिंदा? सर ओवरहेड एज अ कंपनी एज अ होल होता है और डिवाइड किया जाता है मतलब डिपार्टमेंट वाइज. शिवानी? रॉ मटेरियल टेंजिबल होता है और वो दोनों इंटेंजिबल. अच्छा, तो मैं एक बकेट में डालता हूँ मटेरियल और लेबर दोनों को, और दूसरे बकेट में सिर्फ ओवरहेड को डालता हूँ, तो क्या अंतर है दोनों में? इंटर ग्रुप वन में कॉस्टिंग में अलग अलग चैप्टर आते थे, क्या अंतर है दोनों में? द वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, अनदर इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट. फंडामेंटल प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अच्छा, डायरेक्ट cost, indirect cost. Your material cost is a direct cost. Your labor is direct cost. While the overhead, whether it is a fixed overhead या variable overhead, overhead of any type is nothing but an indirect cost. अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लीज ध्यान से समझो. Direct cost has its direct cost driver because of which that cost is getting incurred. सी, दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड विद द मटेरियल. मैंने सबसे पहले आपको बोला था मटेरियल इज मेड आउट ऑफ ओनली टू एलिमेंट, क्वांटिटी एंड प्राइस.
So quantity is a driving force of it. More number of quantity you are consuming, the cost would be more. So ना अब ये नहीं समझ में आता, इसलिए ना वेरिएंसेस हमें सारे डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि हम ओवरहेड या मटेरियल का नेचर ही नहीं समझते। लेबर का ड्राइविंग फोर्स वैसे क्या होता है वृंदा, क्या होगा ड्राइविंग फोर्स लेबर का? जो आवर्स यूज्ड होते हैं। हाँ, लेबर का ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? Hours. जैसे मटेरियल का ड्राइविंग फोर्स वाज क्वांटिटी, वैसा Hours. लेबर का ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? हाँ, आपने बोला ना कुछ, क्या बोला? सर आवर्स। आवर्स। सो लेबर का ड्राइविंग फोर्स वुड बी आवर्स। फिक्स ओवरहेड या तो कोई भी ओवरहेड हो, उसका कोई ड्राइविंग फोर्स नेचुरली नहीं होता है। सो दे आर लाइक एन अबेंडेंट चाइल्ड, they don't have any parents. Material has a parents in the name of quantity. Labor has a parents in the name of hours. Overhead does not have it. तो किसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा so that, अच्छा, हमने कभी मटेरियल कॉस्ट अलोकेट किया? अलोकेशन, अपोर्शनमेंट कभी भी मटेरियल के अंदर आया नहीं, वो सिर्फ ओवरहेड में था। Allocation and apportionment of overheads. It can never be an allocation or apportionment of material cost or labor cost. Why? Because these material costs and the labor costs are direct costs, while your overheads are indirect costs, which requires to be get allocated artificially, because naturally it will not be possible कि वो किसी पे allocate हो पाए। अच्छा, हम वेरिएबल ओवरहेड्स को मानते हैं ये, that it work exactly in the same proportion in which the output is increased. Actually, in real life, it won't happen in that way. There is nothing called variable overheads. Overheads are of semi-variable nature, which we artificially split into what is a variable component, what is a fixed component. Otherwise, overhead का nature ही है semi-variable, de facto. अब फिर artificially we are splitting that what is a fixed element, what is a variable element. So first important thing that you need to understand is that fixed overhead का सबसे important nature क्या है? तो क्या nature है fixed overhead, कैसे होते हैं, क्या जानते हैं fixed overhead के बारे में? fixed overhead होते कैसे हैं? लो, चला गया। शिवानी, कैसे होते हैं fixed overhead? फिक्स्ड होता है। फिक्स होता है, उसको कोई आउटपुट में फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं। इट इज फिक्स्ड, बट हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कॉस्ट को प्रोडक्ट पे अलोकेट करें। क्यों? बिकॉज आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, ऑन दैट वी आर गोना ऐड मार्जिन सो दैट वी कैन डिराइव द सेलिंग प्राइस, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्न्ड। And this overheads are very important element of my total cost. So if I'm not allocating this fixed overheads on the product, then my price will be underpriced. I won't be able to understand at the end of the year that why I'm incurring a loss. Why? Because मैंने fixed overhead को allocate apportion ही नहीं किया. So I would be required to allocate this fixed overhead. I would be required to allocate this fixed overhead on what? On my output. I would be required to allocate fixed overhead on my output, and that is allocation is nothing but your absorbed fixed overhead. So now again let me come to the screen. You can switch off your camera, not an issue. ध्यान देना, आई डोंट नो कितना टाइम जाएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग में ही सिर्फ, लेकिन ध्यान देना, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। सो इसी साइड नीचे करते हैं हम। What we are trying to understand today, we are trying to understand fixed overhead
cost variance. We are trying to understand fixed overhead cost variance. अच्छा, उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जो लिखा वो क्या लिखा, ध्यान से समझना। ये पहले दिन से तुम्हें बताता आ रहा था ना, that it is nothing but standard cost minus actual cost. Hello, what is the meaning of standard cost? Standard cost means what it should be versus what it is. Am I clear or not? What it should be. अच्छा, अगर इस what it should be को भी if I need to further analyze what is the meaning, precise meaning of standard cost. Standard cost means standard cost for actual output versus what is meaning of actual cost? Actual cost means actual cost for actual output. We are trying to maintain this actual output same on the both side so that it should be an apple to apple comparison. Am I clear or not? This is where we come up with a formula that this is nothing but absorbed fixed overhead and this is your actual fixed overhead. 99.9% in your exam, this would be given in question. This is what you'd be required to calculate. So when this is what we would be required to calculate, therefore now we need to understand. देखिए सारी चीज लिखने के लिए ना I'll give a sufficient amount of time. अब भी सिर्फ और सिर्फ सुनने पे और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना. Absorb fixed overhead can be calculated with two different methods based on output, based on hours. प्लीज ध्यान से समझना ये. अच्छा, उससे पहले मैं कुछ फिगर्स यहां पे लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस फिगर्स. Budgeted fixed overhead, actual fixed overhead. This is a kind of question, you can keep that in your mind that is a question. My budgeted fixed overhead was 1 lakh. My actual fixed overhead which I have incurred is, let's say, 1,20,000. Budgeted output, let's say we assume that we are going to produce 10,000. Actual output, let's say it's 9,000. Budgeted hours, let's say it is 20,000. Actual hours, let's say it is 19,000. These are the figures which we are going to use. And by using this figure, we are going to calculate what exactly the absorbed fixed overhead is all about. So let's try to understand what is the meaning of absorbed fixed overhead. Absorbed fixed overhead, when it's an output formula, it would be standard rate of output into actual output. Hello, what is the meaning of absorbed fixed overhead? अच्छा, absorbed fixed overhead है क्या? It is your standard cost. Absorbed fixed overhead है क्या तुम्हारा? It is your standard cost. पहले दिन से भी करते आ रहे हैं, standard minus actually करते आ रहे हैं. So absorbed fixed overhead क्या है तुम्हारा? Standard. तो standard cost is a standard cost for, तो actual output तो रख दिया ना मैंने, सिर्फ वो सेंटेंस को मैंने फॉर्मुलाइज किया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे. What is the meaning of standard cost? Standard cost यहाँ पे लिखा हमने. Standard cost means standard cost for actual. तो एक्चुअल आउटपुट को अगर मैं इसी सेंटेंस को, इसी वाले सेंटेंस को अगर मुझे फॉर्मूला में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? यही तो लिखूंगा ना, that standard cost or you can say absorbed fixed overhead is nothing but standard rate of output multiplied with actual output. Where, what is the meaning of standard rate of output? Where standard rate of output is equal to budgeted fixed overhead. क्योंकि रेट हमें ढूंढना है ना, कौन से रेट पे एब्जॉर्ब होना चाहिए था
और कितना मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग, डिवाइडेड बाय budgeted output. Please understand, in our example, budgeted fixed overhead were 1 lakh and budgeted output is 10,000. So standard rate of output comes to how much rupees? 10 per unit. Am I clear on this or not, everyone? समझ में आ रहा है? Actual output again will be given, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 9,000. So therefore, if I need to find out absorbed fixed overhead by using this formula, this is how we are going to calculate. This is rupees 10 multiplied with 9,000. So absorbed fixed overhead would be how much? This is what it should be. समझना? This is what. अच्छा, कैसे वापिस समझो, वापिस एक बार और समझो. हाँ, ये फिगर्स थोड़ा ध्यान याद रखना. हमने जब बजट बनाया तो हमने दो चीजें डिसाइड की. सबसे पहला क्या डिसाइड किया होगा, कितने यूनिट बना के बेचने हैं. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर एनीवन. कितने यूनिट बना के बेचने, हमने डिसाइड किया 10,000. अच्छा, 10,000 के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ेगी? सी, ओवरहेड इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल. तो 10,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं, 10,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं, उसके लिए जो फैसिलिटी मुझे अवेलेबल करनी पड़ेगी आपको, उसकी मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख. अब 1 लाख इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो आई नीड टू आर्टिफिशियली गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के तुझे 10 रुपए रिकवर करने भाई, तभी जाके पूरे 1 लाख रिकवर होंगे. देखो, मटेरियल कॉस्ट, लेबर हैज अ ड्राइविंग फोर्स. ऑटोमेटिक जैसे तुम प्रोडक्शन करोगे वो होने ही वाला है. लेकिन फिक्स ओवरहेड में तो तुमने एक बनाया तो भी 1 लाख है. हेलो. और तुमने 10,000 बनाया तो भी 1 लाख है. इसलिए हमने आर्टिफिशियली हर एक आउटपुट के यूनिट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको भाई हर एक यूनिट आपको 10 रुपीज रिकवर करने हैं. दिस इज हाउ दिस स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट हैज बीन डिराइव्ड. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, हमने बजट बनाया तब क्या बनाया कि 10,000 यूनिट बनाएंगे और हमारी कॉस्ट हमारे हिसाब से कितनी होगी, हमारा एस्टिमेट हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से कितना होगा, 1 लाख. और इस 1 लाख को ही ध्यान में रखते हुए फिर हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे बोला गया कि आप इमेजिन करो तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा. मैंने बोला 1 लाख होगा मेरा कॉस्ट. इमेजिन, बजट मतलब क्या, इमेजिन. क्या आप इमेजिन करो तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा. मैंने इमेजिन किया कितना होगा, 1 लाख. उस 1 लाख को ध्यान में रखते हुए फिर हमने हर एक यूनिट को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, 10 रुपए का. क्यों? क्योंकि 10,000 बनाने थे. एम आई क्लियर और नॉट? अब मेरा काम, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बजट बन गया, 1 लाख यूनिट हमें बनाने हैं, सॉरी बजट बन गया 10,000 यूनिट बनाने हैं और हमारी कॉस्ट 1 लाख है. ये सब हमने एस्टिमेट कर लिया. अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उतना ही होता कि हम 10,000 यूनिट बनाए. सुनना ये बात, अगर 10,000 यूनिट मैंने बना दिए होते इसी एग्जाम्पल में, तो एब्जॉर्ब वुड हैव बीन इक्वल टू बजट. इस एग्जाम्पल में अगर मैंने 9,000 की जगह पे, देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा, 9,000, इसलिए एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कितना आया, 90. 9,000. प्रॉफिट लॉस को साइड पे रखो. तुम्हें बोला गया था, सुनना, ये तुम्हें बोला गया था क्या, कि तुम 10,000 यूनिट बनाओ. बेचना कैसा है, वो मार्केटिंग का काम है. तुम्हें क्या बताया था हमने, कि तुम 10,000 यूनिट बनाओ. तुमने नहीं बनाए, तुमने 9,000 बनाए, इसलिए 10,000 अंडर एब्जॉर्ब रहा ना. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको करते ही मिस मत करना. ये लॉजिक अंडरस्टैंड किया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे, मैं गारंटी के साथ आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर एंड सर्टिफाइड दैट यू वुड बी नेवर एवर गोइंग टू गेट कंफ्यूज. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, कि भाई आपको मैंने पढ़ाया और एग्जाम दी, अब देखते कितने मार्क्स आए, आने चाहिए थे कितने और कितने आए. एब्जॉर्प्शन इज दैट मार्कशीट. कि हमने बोला था कि तुम 10,000 यूनिट बनाना, हमने 9 बनाए तभी तो 90 हुए. हमने अगर 10,000 यूनिट बनाए होते तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कितना होता, 1 लाख ही हो जाता. आर यू गेटिंग इट और नॉट?
देखो लार्ज पिक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड लार्ज पिक्चर। अगेन आई एम गोइंग इन दिस बेसिक फॉर्मूला, इससे ना तुम्हें लार्जर पिक्चर समझ में आएगा। और फिर ये लार्जर पिक्चर को मैं ऐसे आपको बोलूंगा कि तुम्हारे दिमाग में ना बात क्लियर बैठ जाएगी, फिर तुम सिर्फ फॉर्मूला सेट करो। अच्छा, क्या है सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। 5 मिनट कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेट पर्पस क्या है यहाँ पे हमारा? अल्टीमेट पर्पस इज टू फाइंड आउट फिक्स ओवरहेड। व्हाट इज दैट? व्हाट इट शुड बी वर्सेस व्हाट इट इज। अच्छा, अब समझो ये आया कितना हमारा? 90,000। अब जो अभी किया ना हमने, एक्चुअल कितना है? 1,20,000। क्वेश्चन में देखो 1,20,000 ही है, वो लिखोगे तब तुम देखना 1,20,000 है। दिस इज अ गैप ऑफ 30,000 which is adverse. This is a gap of 30,000 which is adverse. सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब इसे मुझे एनालाइज करना है। क्या करना है आगे? अभी अब इसको एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे? नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग थिंग दैट यू प्रोबेबली हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ। जिसने नहीं पढ़ा है ना, तूने मेरे पास पढ़ा है तो तुझे पता है स्टोरी। जिसने नहीं पढ़ा है ना, दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, नाउ गोना स्टार्ट। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस क्या है? What it should be versus what it is. What is should be versus what it is. It should be how much in our example? 90. What it is? 120. हेलो, 30 ज्यादा खर्चा किया हमने। क्यों? क्यों की बात समझते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा बजटेड फिक्स ओवरहेड हमने यहां पे इंसर्ट क्यों किया। अच्छा, बजट कितना था बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारे एग्जांपल में? एक्चुअल कितना इनकर किया हमने? मुझे जब मैनेजमेंट ने बोला कि भाई तू एस्टिमेट बना कितना खर्चा आएगा, मैंने कितने का बनाया? 1,00,000 का। एक्चुअली कितना हुआ? 1,20,000। सो ये 20,000 जो आ रहे हैं एडवर्स, ये इंटरेस्टिंग फेज आएगा अब। ये 20,000 जो आ रहे हैं एडवर्स, दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना? इंटरेस्टिंग फ्रेज, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तुमको बोला गया था कि तुम सोचो बजटेड कितना होगा, तब हमने मना नहीं किया था कि तुमको क्या सोचना है, तुम सोचो कितना हो रहा है। तुमने सोचा 1,00,000, बजटेड हमारे एग्जांपल में कितना है? 1,00,000। एक्चुअल कितना हो गया? 1,20,000। सो दिस 20,000 इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अच्छा, एनालाइज उस चीज का करेंगे ना विच इज विद इन योर इमेजिनेशन, कि तुम्हारे इमेजिनेशन में तुमने क्या गड़बड़ की। विद इन दैट, विद इन दैट, कि तुमने बोला 1,00,000 तो फिर भी 1,00,000 तो नहीं हुए, 90 हुए, कम हुए। तो क्यों कम हुए? ये 1,00,000 के ऊपर तो जो तुम 20 दे रहे हो ना, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बियॉन्ड इमेजिनेशन मीन्स अनकंट्रोलेबल। तुम्हारे ध्यान में ही नहीं थे भाई ये 20,000 तो। Therefore, we are expensing it out. Therefore, it is known as expenditure variance. That is the reason why we are inserting budget. Just to split what is controllable, what is uncontrollable. Am I clear or not? Everyone, स्टोरी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टोरी तो स्टार्ट हुआ है। क्लाइमैक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। अच्छा, क्लाइमैक्स में धीरे धीरे आते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये था, एग्जांपल याद है ना? एग्जांपल में एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में रखो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो लिख के रखो, कहीं पे भी नंबर या लिख के रखना, लिख के रखो। बजट ओवरहेड कितना था हमारा? 1,00,000। एक्चुअल कितना है? 1,20,000। बजट के हिसाब से बनाने थे हमें 1,00,000 यूनिट, बनाया कितने हमने? 9,000। 10,000 बनाने थे, बनाए हमने 9,000। बजट के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए थे? 20,000। एक्चुअल कितने हो रहे हैं? 19,000। इतना सिर्फ दिमाग में रखो, उसी को हम तोड़ मरोड़ के इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे इसका कि तुम कभी भी एफर्ट ही नहीं दोगे इसको याद रखने के लिए, और लिटरली प्रे करोगे कि एग्जाम में यही वाला वेरिएंस आना चाहिए। तो पहला तो स्प्लिट क्या हुआ? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्यों? बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो लिख के रखना, जब भी दूसरी बार लिखो ना, दिस इज योर बियॉन्ड इमेजिनेशन। यू कैन से अनकंट्रोलेबल। हेलो, बियॉन्ड इमेजिनेशन। एम आई क्लियर और नॉट? अब हम बात करते हैं दैट विद इन योर इमेजिनेशन
कहाँ गड़बड़ की, बिकॉज दैट इज समथिंग विच रिक्वायर्स एन एनालिसिस. दिस इज समथिंग. एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड समझ में आया क्या है? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड. हेलो एवरीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड? ये फॉर्मूला लिखा हमने, ये भी आपको लिखना तो है ही. दो तरीके कौन से हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड ढूंढने के? एक है आउटपुट वाला फॉर्मूला. अब आते हैं आर वाले फॉर्मूला पे. कि पहले पूरा पढ़ा दूं फिर आर सिखवाऊं? सीख लूंगे पहले आर वाला. चलो, अब मेरे को बताना, अगर एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का आउटपुट का फॉर्मूला ये होगा, मैं रैंडमली आ रहा हूं, ऑनलाइन वालों आपके पास भी, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का आउटपुट वाला फॉर्मूला अगर ये होगा, तो आर वाला फॉर्मूला क्या होगा? एक चीज तो कंफर्म है, ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ क्या है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ क्या है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर. इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट. अच्छा, लेबर में स्टैंडर्ड की फॉर्मूला क्या थे? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड. इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आर, ये स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट के स्टैंडर्ड आर चाहिए ना. तो पहली बार सुन रहे हो ना, तो हैंग होने के चांसेस आर मोर देन 90%. डोंट वरी, आई एम नॉट गोना लीव यू. मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं. वापिस एक बार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ना मैं छोड़ता हूं ना छोड़ने देता हूं. वापिस हम क्या कर रहे हैं? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट variance. We are trying to do fixed overhead cost variance. Now try to understand. समझ में आ रहा है ना? हैंग नहीं हो रहा है ना अभी भी? होगा, सुनो कैसे होगा. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, अभी सिर्फ इतने पे ध्यान दो, चलो बाकी सब छोड़ देते हैं. और ये एग्जांपल जो मैंने दिया ना, दिस इज एन एग्जांपल जहां पे हमने ये फिगर्स लिखे थे. बजटेड फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड. दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच यू आर यूजिंग. दिस इज हाउ मच. ये लिख के रखना है तो लिख के रखो, तो कंफ्यूजन नहीं हो फिर. This is 1,20,000. Budgeted output 10,000. Actual output 9 था ना हमारे में. Budgeted hours how much? 20,000. Actual hours 19,000. ठीक है. इसी एग्जाम्पल, इसी नंबर्स को हम तोड़ मरोड़ के वी आर गोना अंडरस्टैंड. क्लियर? एक और बार वापस से, क्योंकि जब तक पहला स्टेप नहीं चढ़ोगे तब तक तो दूसरे तीसरे में तो तुम जा ही नहीं सकते हो. सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है फिक्स ओवरहेड का नेचर क्या है. इट इज अ फिक्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ओवरहेड. ओवरहेड डज नॉट हैव एनीवन एज अ पेरेंट्स के जिसके बेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाता, वरना अलोकेट हो जाता है ही नहीं कोई. ना उसकी क्वांटिटी है, ना उसके आर्स होते हैं लेबर की तरह. तो हमें आर्टिफिशियली ढूंढना पड़ता था. इसीलिए हम जब इंटर में ओवरहेड चैप्टर करते थे, इसीलिए हम ओवरहेड अलोकेशन अपोर्शनमेंट करते थे. फिर देखते थे कि ये जो ओवरहेड है वो मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन आर पे अलोकेट करते थे. ये जो एक्टिविटी है वो लेबर ओरिएंटेड है तो लेबर आर पे अलोकेट करते थे. ये जो एक्टिविटी है आउटपुट ओरिएंटेड है तो आउटपुट के बेस पर अलोकेट कर देते थे. दो तीन जगह पे होता है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करते थे, एक्स वाई वाला. लेकिन ओवरहेड को तो अच्छा कुछ नहीं है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, उसमें भी ओवरहेड ही अलोकेट होते ना. उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी तुम कभी भी लेबर और मटेरियल का अलोकेट नहीं करते हो, बिकॉज उसको अलोकेशन की जरूरत ही नहीं है, विच इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. ओवरहेड अलोकेशन की जरूरत ही आती है ओवरहेड को. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ड्राइविंग फोर्स. सो वी नीड टू अडॉप्ट समवन, and we can adopt either output or R. So absorbed fixed overhead are nothing but your standard cost.
This is known as absorbed fixed overhead. This is your actual fixed overhead. Am I clear or not? बाद में हमने समझा कि सर आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। अच्छा, हमें प्रूफ दो कि यही है। तो चलो प्रूफ के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, प्रूफ के लिए हम कहां पे जाएंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस में जाते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता था? लेबर कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता था? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर, वेयर आई हैव फोकस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड आर बिकॉज स्टैंडर्ड आर इज अ स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल। याद है ना ये? और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेट है तो ये स्टैंडर्ड रेट कौन सा रहेगा? रेट पर आर वाला रेट रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? यही ध्यान देना है यहां पे। तो इसलिए हम जब यहां पे बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड की, तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड भी जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, आउटपुट के नजरिए से भी और आर के नजरिए से भी। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड बिकॉज एब्जॉर्ब इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो यूनिवर्सली कॉस्ट के लिए सेम ही होगा। अगर आर के नजरिए से स्टैंडर्ड कॉस्ट हम देखें तो ये जो फॉर्मूला था यही फॉर्मूला आएगा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर्स मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आर, नॉट एक्चुअल आर, मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आर बिकॉज स्टैंडर्ड आर इज स्टैंडर्ड आर फॉर, that is what we want, कि what cost should have been for actual output. Am I clear or not? Similarly, if I want an output formula, तो सिर्फ ये तो सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड रेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट किसके लिए आएगा? आउटपुट के लिए। और मल्टीप्लायर अब यहां पे कौन हो जाएगा? एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? वेयर अब दोनों के लिए कॉमन लिखते हैं। सो दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, this is something you probably need to derive, where standard rate of output is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted output. In our example, 1 lakh divided by 10,000 is equal to rupees 10 per unit. Hello. सिमिलरली स्टैंडर्ड रेट ऑफ, अगर आर ढूंढना होता मुझे तो वापस फॉर्मूला तो मैं ये यूज करता भाई, बजटेड फिक्स ओवरहेड, लेकिन डिवाइड बाय आउटपुट नहीं करता, क्या करता मैं? बजटेड आर्स करता। तो दिस इज 1 लाख डिवाइड बाय, अब हो गए कितने? 20,000। सो दिस वुड हैव बीन रुपीज 5 पर आर। क्लियर है कि नहीं है? श्योर। standard R is equal to standard R for actual output. Right or wrong? Therefore, if you can see this example, you will realize that I am producing how many units? 10,000. For which how many hours are required? 20. So per unit 2 hours है। पर यूनिट कितने आवर्स हैं? 2 आवर्स हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? कि एक्चुअल जो हमने 9,000 यूनिट बनाए हैं उसके लिए कितने आवर्स मुझे कंज्यूम करने चाहिए थे? जब एक को 2 लग रहे हैं तो कितने होने चाहिए थे ये? एम आई राइट और रॉन्ग? सो इस तरीके से यहां पे अगर हम करते, so this is what we probably would have calculated, that standard rate for actual output 9,000 is your actual output and 2 hours is a hour required per unit, so standard hour would have been 18,000। actual output कितना है हमारा? 9,000। अच्छा, अब दोनों का आंसर सेम आए तो ही हमारी फॉर्मूला सच्ची, क्योंकि हमने एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड ढूंढने के दो रास्ते ढूंढे, मंजिल तो एक ही है। तो अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करके वाली फिगर देखते हैं, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट विच इज 10 मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आउटपुट 9, कितना आ रहा है ये? 90,000। राइट और रॉन्ग? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर कितना है हमारा? 5। तो हमने स्टैंडर्ड आर भी सामने ढूंढे, कितने ढूंढे? 18,000।
ये भी कितना आ रहा है? दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर लेबर ही है। सिर्फ यहां क्योंकि ओवरहेड है, तो एब्जॉर्प्शन कुड बी ऑन आउटपुट बेस्ड, एब्जॉर्प्शन कुड बी ऑन आर बेस्ड ऑल्सो। Therefore, I have calculated in a two different way कि अगर आउटपुट फॉर्मूला मुझे यूज करनी है तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड में कैसे ढूंढ सकता हूं, और मुझे आर बेस पे एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं। एम आई क्लियर और नॉट? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन नाउ? व्हाट्सोएवर, बी वेरी क्लियर, हाँ या ना में मेरे को बताओ। समझ में आया सबको? चलो स्क्रीन पे आओ, मेरे को पहले शक्लें देखूं ना तो मेरे को समझ में आया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुंह देख के समझ में आ जाएगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। तौकीर भाई, यस सर। समझ में आया ना तुझे? यस सर। सावित्री, यस सर। मतलब प्रेजेंस नहीं ले रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया शिवानी तेरे को? कुछ नहीं? वृंदा मेरे को एक्सप्लेन कर, एब्जॉर्ब फिक्स रेट क्या होता है, चल। ये 4 घंटे जाते हैं सिर्फ फॉर्मूला को समझने में, और इसमें तुमने 2 - 3 1 - 2 किया ना तो भूल ही जाओ जिंदगी भर। जिस कंपनी में तुम लगे उसका बेड़ा गर्क है फिर। बताओ क्या समझ में आया एब्जॉर्ब फिक्स रेट? अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया उसमें समझ में क्या है? मेरे को समझ में आया ना, कितना नहीं समझ में आया? बियॉन्ड इमेजिनेशन समझ में नहीं आया कि विद इन इमेजिनेशन समझ में नहीं आया, वो देखना है मुझे। मेरे को राइट ऑफ करना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस के नाम पे। बोलो वृंदा, व्हाट इज एब्जॉर्ब फिक्स रेट? Absorb fixed overhead means standard, sorry, actual hours into standard rate. Output based અને hours based. hours based હોય તો standard rate into actual hours અને output based હશે તો हाँ हाँ बोल, सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवानी पता चला एब्जॉर्ब फिक्स रेट क्या होता है? नो आइडिया व्हाट्सएवर। अरे देखो, गलती होगी ना, इसीलिए तुम यहाँ पे बैठे हो और इसीलिए मैं शाम को तुम्हारे सामने बैठता हूँ। ये कोई आस्था चैनल चल नहीं रही है। तो नहीं समझ में आया तो कहाँ गड़बड़ हो रही है ना, तो मैं वहां ट्रिगर पॉइंट करके, ये ऐसा ही है, तुम मेरे सामने बैठ के यहीं मेरी टेबल पे पढ़ रहे हो, इसी तरीके से देखो इसको। ये तुम कंप्लायंस नहीं कर रहे हो ऑनलाइन आने का सिर्फ, ना यहाँ बैठे वाले लोग कंप्लायंस कर रहे हैं कि चलो जाना चाहिए, जिससे कि मुझे साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं लगे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या मैं पढ़ नहीं रही हूँ। इसलिए मुझे रोज शाम को या तो सुबह जल्दी उठ के ऑनलाइन आ जाना है, क्योंकि फिर मेरे को मेरे मन को समझाना है ना कि मैं इतने घंटे मैंने लेक्चर अटेंड करना था, मैंने कर लिए। हाँ, समझ में आता है नहीं आता है, दैट इज अ सेकेंडरी स्टोरी। तो अगर नहीं समझ में आया है तो पूरा मैं वापस कराऊंगा, लेकिन इसके बिना आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता मैं। कौन बताएगा तुम्हारे में से या तुम्हारे में से? चलो इधर वालों को मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ तो गले के नीचे गया है, घर पे बैठ के नहीं जाता है बहुत बार। शिवानी, अब तक क्या समझ में आया मेरे को बता चल। आज के 1 घंटे से जो मैं गला फाड़ रहा हूं मेरा, उसमें क्या 5% 10% समझ में आया? सिर्फ वही जानना है मेरे को। ये वही जो एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और वेरी जो गुड। एक्चुअल है वो एक्चुअल है। एक्चुअल तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, वो देखो दिया है होगा। ना। एक्चुअल कभी भी ढूंढना है ही नहीं। एक्चुअल वुड बी रेडीमेड गिवन इन योर एग्जाम्पल।
मैं जो 1 घंटे से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये वही तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ तो फिर आता हूं मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एब्जॉर्ब फिक्स रेट सिर्फ नाम अलग है स्टैंडर्ड कॉस्ट ही। तो तुम सिर्फ उतना याद करो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते आ रहे थे। हम करते आ रहे थे स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल ओवरहेड से कोई लेना देना नहीं होता है। मैक्सिमम ओवरहेड एलोकेट हो सकता है तो वो हो सकता है आर के ऊपर या तो आउटपुट के ऊपर। अब क्योंकि हमने लेबर वेरायंस किया हुआ है, इसलिए मैं उससे कोरिलेट करके तुम्हें ये एंश्योर करा रहा हूं कि एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड सिर्फ नाम चेंज हुआ है। इट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिंपल टर्म में मतलब होता है वॉट इट शुड बी। इट इज नॉट वॉट यू हैव इमेजिन्ड। वॉट यू इमेजिन इज 1 लाख बिकॉज दैट इज योर बजट। आपने इमेजिन क्या किया था वो आपकी बजटेड कॉस्ट होती है। वॉट इट शुड बी मतलब कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। आपने क्या किया, आपने 9,000 यूनिट बनाए तो 9,000 के लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। अब 9,000 अगर यूनिट मैंने बनाए हैं और एक यूनिट को 10 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे 10 रुपए की? क्योंकि 1 लाख मेरा बजटेड था और बजट के हिसाब से मुझे 10,000 यूनिट बनाने थे। तो पर यूनिट, हर एक यूनिट को 10 रुपीज रिकवरी करने थे और एक्चुअल मैंने बनाए हैं 9,000। तो मेरा होना चाहिए था खर्चा 90,000। वॉट इट शुड बी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अंडरस्टूड है कि नहीं है? ये लॉजिक से ही जो ना इसको रट्टा मारने की कोशिश की ना, 7 जन्म में भी नहीं कर पाओगे तुम। फिर मेरे को ही गालियां दोगे कि सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया था इसलिए कॉस्टिंग में मार्क कम आए। बाकी सब में आ जाएंगे, कॉस्टिंग में फिर कम आएंगे। तो बोलोगे क्या कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे मैं ऑप्शन में छोड़ दी तो ने, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर પછી टाइम नतो મળ્યો અમને। અને સરે બહુ ડિફિકલ્ટ રીતે કરાયું હતું। देखो डिफिकल्ट तरीका नहीं है ये लॉजिकल तरीका है। 1 - 2 3 - 2 तो ये ऐसे लोग करते हैं जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आती। इंटर में वो चल जाए, क्यों? क्योंकि वहां इतना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं जरूरी। आप जब किसी कंपनी में काम करोगे, अब तुम्हें नेचर ही नहीं पता एब्जॉर्ब कैसे होता है और उसको वेरिएंसेस कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। तो वो तो आप मान के चलो, अगर तुम्हें वेरिएंस एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा है ना, वो कंपनी तो निकाल ही देगी तुम्हें। नहीं जा रहा है उसको पता होगा कॉस्टिंग पे कितना कंट्रोल और ओवरहेड के अलोकेशन पे कितना फोकस करते हैं कंपनी। क्योंकि अगर ओवरहेड मिस अलोकेट हो गया है, उसका नेचर ठीक से तुम नहीं समझे, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट, what it should be for actual output, and that is where we come up with two formulas। एक तरीका है, क्योंकि दो फॉर्मूला क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो। दो फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि ओवरहेड का कोई माँ बाप नहीं है। हमने दो लोगों को प्रपोजल भेजा कि भाई इसको अडॉप्ट करो। एक प्रपोजल भेजा हमने आउटपुट को कि भाई आउटपुट तू आके इसको एब्जॉर्ब कर। तो आउटपुट ने बोला हाँ, तो फिर मेरी क्या फॉर्मूला होगी? तो आउटपुट का हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन क्या? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, जिसको कि बोलते हैं आउटपुट वाला पेरेंट्स, ये इसको अब्जॉर्ब करेंगे। फिर अगर आउटपुट से अब्जॉर्ब होते हैं तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, आउटपुट इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें नए पेरेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। वो होंगे आर वाले। तो आर, उसमें कौन है हस्बैंड वाइफ? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आर। क्यों स्टैंडर्ड आर, नॉट एक्चुअल आर? बिकॉज स्टैंडर्ड आर इज a स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, what it should be। am I clear or not everyone? thoroughly? तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड रेट है ना, ध्यान उसी पे देना है कि स्टैंडर्ड रेट या तो हो सकता है तुम्हारा आउटपुट का, स्टैंडर्ड रेट या तो हो सकता है तुम्हारा आर का। स्टैंडर्ड रेट अगर आउटपुट का है तो कैसे ढूंढेंगे? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। क्योंकि वो तो हम पहले से डिसाइड करके बैठे हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कर सकते। रेट तो रेट पहले से फिक्स होता है। अगर स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो वापिस बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय नाउ बजटेड आर्स, क्योंकि हमें आर का रेट चाहिए। अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है ये एवरीवन? थरली
एनी कंफ्यूजन? हाँ तो फिर बता क्या था। यस सर, वो आप एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड पूछ रहे थे, वही बोलना था। हाँ बता ना क्या था। बजटेड फिक्स ओवरहेड या जो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड होता है उसको एक्चुअल आउटपुट पे जो अलोकेट करते हैं, और फिर जो आता है वो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड होता है। गुड। तो अब तक क्या समझा हमने? अब देखो ना, मैं ये पूरी स्टोरी अभी तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम कनेक्ट कर पाओ। मेरे को लग रहा है तुम, ये कैसा है पता है, दिस इज लाइक अ मूवी ऑफ शैलॉक। तो तुम्हें इनिशियल डॉट कनेक्ट करोगे ना तो तुम्हें ये मूवी का मिस्ट्री समझ में आएगा। अच्छा, ओवरहेड हम वेरिएंसेस क्यों ढूंढ रहे हैं? चलो वेरिएंसेस क्यों ढूंढ रहे हैं? जिससे कि हम देख पाए ना कि कहाँ कंट्रोल की जरूरत है और क्या है विच इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। कहाँ कंट्रोल की जरूरत है और कहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए पहला ही जो वेरिएशन आया वो आया एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब क्या? उसकी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तुमने लिखी हुई है ना। फॉर्मूला में देखो क्या है फॉर्मूला उसकी। एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। हेलो सॉरी, बजट माइनस एक्चुअल, आई एम सॉरी, बजट माइनस एक्चुअल। तो बजट कितना है तुम्हारा? 1 लाख का। और हुआ कितना? 1,20,000। मतलब ये क्या बात हुई बे? तुम बजट 1.5 लाख करो भले, फिर होते हैं कम। तुमने बजट सिर्फ 1 लाख का किया और एक्चुअली हो गए हैं 1,20,000। तो ये 20,000 तो ऐसे हैं जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। जो तुमने सोची भी नहीं थी, फिर उसके बारे में एनालिसिस करने का क्या लॉजिक बनता है? इसलिए उसका फर्दर एनालिसिस नहीं होता है। अच्छा, तुमने कहां तक सोचा था? 1 लाख तक। ठीक है, उस पे आते हैं अब। देखो दिस इज अ स्टोरी। पहले हमने सोचा कि कितना मुझे सोचना था, फिर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन क्या है, तो 20,000 का गैप। कि मैंने सोचा था 1 लाख तक, हो गए कितने? 1,20,000। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि तुमने ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, हटाओ उसको। तुमने क्या सोचा था? 1 लाख। तो हुए 1 लाख? नहीं हुए। कितने हुए? 90,000। एब्जॉर्ब कितना था हमारा? 90। 90 कहां से आया? 9,000 इंटू 10 जो हमने कैलकुलेट किया था। हेलो, एब्जॉर्ब कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 90,000 आया ना हमारे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल याद है कि नहीं है शिवानी के? कहाँ ख्यालों में है तू? 90,000 था एब्जॉर्ब। सो एब्जॉर्ब किया मैंने कितना? 90,000। हेलो, एब्जॉर्ब किया कितना मैंने? 90,000। बजट कितना है मेरा? 1 लाख का। फिर भी 10,000 का गैप है। मतलब मुझे खर्चा करना था 1 लाख तक। कितना करना था? 1 लाख तक जाना था मुझे, मैं नहीं गया। मैं कहां पे रुक गया? 90 पे ही रुक गया। अब समझना क्यों ऐसा किया तूने। 90 पे क्यों रुक गया? अच्छा आंसर तो मेरे को, ये बहुत ना, ये बेसिक आईक्यू क्वेश्चन है। 9 पे क्यों रुक गया? 90 पे क्यों रुक गया? ये 1 लाख क्यों नहीं हुआ? एब्जॉर्ब 1 लाख क्यों नहीं हुआ? ये मेरा क्वेश्चन है। सिंपल आईक्यू एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नॉलेज की जरूरत नहीं है इसके लिए। 90,000 क्यों हुआ? केवल एग्जाम्पल लख्यो से તમે લોકોએ तो लखों पहला ने विचारो ने मैंने आंसर आपो। एब्जो फिक्स हो रहे 90,000 कैसे ढूंढे बृंदा, पता है तेरे को? एब्जो फिक्स हो रहे 90,000 कैसे ढूंढे पता है? बजटेड आउटपुट 10,000 था और हमने एक्चुअल आउटपुट 9,000 ने किया। फिर से बोले एक बार। बजटेड आउटपुट हमारा 10,000 था और हमने एक्चुअल आउटपुट 9,000 ने किया। हाँ तो इसकी वजह से हमारा खर्चा एब्जॉर्ब कितना हुआ? 90,000। सावित्री तो बोल रही है यार आज लेक्चर खत्म हो जाए तो बहुत है। तो आखिर तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने शिवानी? एब्जॉर्ब ओवरहेड 1,20,000 दैट इज एक्चुअल ओवरहेड। चलो पहले ना एक काम करो, मैं फिर लिखा हुआ नहीं है। हाँ लिखो, चलो यार पहले लिखो इसको। पहले लिखो इसको। ये जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला लिखो, दिस वन। क्योंकि आधे से ज्यादा कोई एग्जाम्पल ही याद नहीं है।
दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। बीच में 2 सेकंड के लिए भी शिवानी ध्यान गया ना तो मैं पूरी जिंदगी बोलता रहूंगा ना, फिर भी नहीं समझ में आएगा यार। ये ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इंटर में ऐसे नहीं पढ़े हम, है ना? तो ऐसे नहीं पढ़ा ना, इंटर में ऐसे पढ़ा इस तरीके से। हेलो। सबने लिख लिया ना? लिख लिया एग्जाम्पल? हेलो शिवानी, लिख लिया एग्जाम्पल तूने? हाँ। अब मेरे को बता, इससे एब्जॉर्ब फिक्स हो रेट ढूंढ के बता मेरे को। नीचे जा ही नहीं रहा हूं मैं अभी तो, पहली वाली फॉर्मूला में है हम। एब्जॉर्ब सिर्फ ढूंढ के बता। आवर्स के बेस पे आउटपुट। आउटपुट आर, जैसे आउटपुट के बेस पे ढूंढना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आउटपुट के बेस पे ढूंढ। लगातार 2 लेक्चर करवाऊंगा तब जाके दिमाग में उतरेगा, और एक बार उतर गया ना फिर कोई टेंशन ही नहीं है। वृंदा, कैलकुलेट कर लिया तूने भी? एवरीवन नीड टू डू दिस, हाँ, ये एक्सरसाइज। कितना आया शिवानी? नहीं आया, एब्जॉर्ब फिक्स हो रेट नहीं आया। गलती है कुछ तो। कितना बोल, कितना बोल मेरे को बता। व्हाट इज एब्जॉर्ब फिक्स रेट? फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट कैसे ढूंढा? स्टैंडर्ड रेट बजटेड फिक्स ओवर रेट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। फिर आउटपुट, हाँ मैं बोल रही थी। तो 10 आया वो। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9। तो व्हाट इज एब्जॉर्ब? 1000। 90,000। 90। बृंदा आया ये? सावित्री, इन लोगों को, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है आज, दिक्कत नहीं है ना कोई? हाँ, क्लासरूम में वाले को दिक्कत नहीं आती है, घर पे बैठ के। बृंदा डोंट हैव ऑप्शन, सावित्री डोंट हैव ऑप्शन, तौकीर और शिवानी क्यों घर से पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। एब्जॉर्ब कितना आया अभी? कितना आया शिवानी, कितना है एब्जॉर्ब? 90। और कितना होना चाहिए था? मतलब तुमने बजट कितना किया था? बट बजट ओवरहेड कितना है? 1 लाख। अच्छा, तो होना चाहिए था 90, बजट किया था तुमने 1 लाख। स्टैंडर्ड एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कितना है तुम्हारा? 90, बजट किया था 1 लाख। तो ये 90,000 मतलब 10,000 कम क्यों हुए? अब समझो, अब लार्जर पिक्चर में समझो। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इज 1,20,000, तुमने बजट किया था 1 लाख तक। तो 1 लाख से लेके 1,20,000 वाला जर्नी में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दैट इज प्योर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट इज योर एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
बजट वर्सेस एक्चुअल, कि तुमने बजट 1 लाख किया था और एक्चुअल भी 1 लाख ही हुए, तो योर इमेजिनेशन इज परफेक्ट। बजट अगर 1 लाख किया था और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी कितने हो रहे हैं 1 लाख, तो योर इमेजिनेशन इज परफेक्ट। लेकिन बजट तुमने यहां पे किया है 1 लाख और एक्चुअल हुए हैं 1,20,000, मतलब 20,000 तो ऐसे हुए हैं जो कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन थे। हटाओ उसको चलो, क्योंकि वो 20 तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है वैसे भी। 1 लाख तुमने बजट किए थे, 1 लाख हो रहे हैं नहीं, कितने हो रहे हैं एब्जॉर्ब? सिर्फ 90। ये 10,000 एब्जॉर्ब कम क्यों हो रहे हैं? क्यों कम हो रहे हैं? आउटपुट कम प्रोड्यूस हो। आउटपुट हमने कितना प्रोड्यूस किया? 9। 9,000। अगर ये एक्चुअल आउटपुट को, शिवानी, एक्चुअल आउटपुट को 9,000 की जगह पे 10,000 करो तो कितना आता है एब्जॉर्ब? 1 लाख। तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहता फिर। एब्जॉर्ब एंड बजट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तुमने कितने यूनिट कम बनाए? 1000। अच्छा, एक यूनिट को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? 90। एक यूनिट को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिकवरी की? 10। तो 10 इंटू 1,000 करो, कितना आया? 10,000। अगेन अ गैप बिटवीन 1 लाख एंड 90,000 is same 10,000. So therefore we can say that this difference is coming because of volume. That is why it is known as fixed overhead volume variance. Am I clear or not? Hello, one more time, one more time. Fixed overhead cost variance. तो आखिर बता, what is fixed overhead cost variance formula? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला तो केर क्या है यार, तेरे कनेक्टिविटी में इतने फंदे हैं ना। बृंदा बता चल, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला। यस सर। मेरी Absorb आवाज fixed आ रही है? overhead, हाँ बोलो बोलो। absorb fixed overhead minus actual fixed overhead. सो दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज व्हाट? यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट इज व्हाट? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड। व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट शुड बी इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन कितना आउटपुट तुमने बनाया और उस आउटपुट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था। एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एन एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। तो वहां हमारे पास दो रास्ते हैं, आउटपुट वाला, आर वाला। स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज एन आउटपुट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर इनटू स्टैंडर्ड आर इज आर वाला फॉर्मूला। हेलो एवरीवन, standard rate of output is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted output. Standard rate of R is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted R. Am I clear or not? यहां तक, अब तक हमने ये कंक्लूजन किया, 1 लाख और 1,20,000 के ऊपर का डिफरेंस is beyond your imagination, does not require any further analysis. But the difference between 90,000 and 1 lakh absorbed and budget, 90,000 minus 1 lakh, this 10,000 need to be analyzed. क्यों? क्योंकि this is coming because of fluctuation in volume. You should have produced 10,000, but because you have produced only 9,000, therefore per unit has a responsibility of 10 rupees, and therefore this 10,000 variance is arising. हाँ, बंद रख, वीडियो चलेगा तो फिर बंद रख, चलेगा। बाकी सबको तो नहीं करना है बंद, क्योंकि समझ में आया तुम आजू बाजू में क्या बातें कर रहे हो। सावित्री, तुम्हें लगता है तुम्हारा माइक बंद है लेकिन माइक चालू था। ऐसा बैटरी नहीं है, 5% बैटरी है इसीलिए। कि तेरी के मोबाइल की? नहीं नहीं, मोबाइल की चार्ज में रखा है। ठीक है, ठीक, बंद कर दे, चलेगा। सो 1 लाख एंड 1,20,000 वाला गैप तो हमें समझ में आया, बियॉन्ड इमेजिनेशन। 90 और 1 के वजह के गैप था बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, देयरफॉर इट इज नोन एज वॉल्यूम वेरिएंस। कंक्लूजन क्या है इसका?
क्योंकि मैंने 10,000 यूनिट नहीं बनाए, सिर्फ 9,000 यूनिट बनाए, इसकी वजह से ये वेरिएंस आया। तो मैंने 9,000 क्यों बनाए? हेलो। अच्छा ये कैसे है बताए? मैंने एक्सपेक्ट किए थे लेट्स से शिवानी के मार्क आने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में 80, उसके आए 75, 5 मार्क कम आए। 5 मार्क ही कमाया, तू चिंता मत कर। 80 का 75 हुआ है तो पास तो है, डिस्टिंक्शन है, रैंक भी है तेरा। लेकिन 80 की जगह पे कितना आया? सिर्फ 75। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड नो नाउ कि मैंने जब एक्सपेक्ट किया था 80 तो 75 क्यों आया। सिमिलरली यहां पे भी है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कंपनी शुड प्रोड्यूस 10,000, 9,000 क्यों बनाया? हेलो, कनेक्टेड रहो, तुम छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कंपनी को काम करके कितना बनाओ, 10,000 यूनिट बनाओ। अगर 10,000 यूनिट बनाते तो वॉल्यूम वेरिएंस ही नहीं होता। तेल लेने गया, बेच सकते कि नहीं बेच सकते? तुम बनाओ तो सही। तुमने 10 की जगह पे 9 बनाया, इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस आया। तो अब मैं सोचूंगा ना कि शिवानी के 80 की जगह पे 75 क्यों आया है। दो रीजन हो सकते हैं। शिवानी, कौन से दो रीजन हो सकते हैं मार्क कमाने के? या तो तुमने काम नहीं किया, या तो तुमने एफिशिएंटली काम नहीं किया। दो ही रीजन है ना। तुमने या तो तुम्हारी कैपेसिटी पे काम नहीं किया, जितने घंटे तुम्हें पढ़ना था उतने घंटे तुमने नहीं पढ़ा, मतलब तुम्हारी कैपेसिटी थी लेकिन तुमने उस कैपेसिटी को यूज नहीं किया। दैट इज अ कैपेसिटी वेरिएंस। वेरिएंस में नाम पढ़ते जाओ आगे, सारी यही वेरिएंसेस हैं कि मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए था और मैंने कितने घंटे काम किया। मैंने कम घंटे काम किया होगा इसीलिए मेरे 9,000 बने। या फिर हाँ, मैं बुक खोल के बैठी रही लेकिन पढ़ा नहीं, मतलब एफिशिएंसी की वजह से। तो दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। एम आई क्लियर और नॉट? सो व्हेन वी स्टार्टेड विथ एब्जॉर्ब वर्सेस एक्चुअल, हमने इस पहले अलग कर दिया वो वाला एलिमेंट कि जो कंट्रोलेबल ही नहीं है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। नाउ वट एवर इज लेफ्ट आउट, अगर वहां पे वेरिएंस है उसका मतलब ये होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ द वॉल्यूम, तभी वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा। सो हमने 1,000 यूनिट कम बनाए हैं, तो नाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड। फॉर्मूला देखोगे ना तो नीचे पता चलेगा कि वॉल्यूम के नीचे दो पार्ट पड़ते हैं, वो होता है एक कैपेसिटी, दूसरा है एफिशिएंसी। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि 1,000 यूनिट जो मैंने कम बनाए, ये क्यों कम बने? या तो मैंने जितने घंटे काम करना था उतने घंटे काम नहीं किया, दैट इज योर कैपेसिटी वेरिएंस। या तो मैंने जितने भी घंटे काम किया वो एफिशिएंटली नहीं किया, दैट इज सेकेंडरी एफिशिएंसी वेरिएंस। उसी को फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है यही बात कि मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए था, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, और जितने भी घंटे मैं काम कर रहा हूं एफिशिएंटली कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। एम आई क्लियर और नॉट? ये अब आगे ना मैं कल कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। सिर्फ इतना आज लिखना है, इसमें से कुछ, आज वाले में से कुछ लिखना है? नहीं लिखना ना? फाइन। आज सिर्फ ना इतना ऊपर ऊपर वाला देख के रखना, और कल थोड़ा फ्रेश मूड लेके बैठना, वरना तो मैं या तो थक जाऊंगा या तो तुम लोग थक जाओगे। समवन हैज टू गिव अप। आई वोंट। हाँ, लेकिन थोड़ा फ्रेश मूड में ही समझ में आएगा ये। फाइन। तो अच्छी कॉफी वॉफी पी के बैठ जाना कल वृंदा। चलो, यह स्टॉपिंग फॉर द डे, इतना अच्छे से रिवाइज करना। कल वापस में इसको रिपीट करके फिर आगे पढ़ेंगे, है ना?